बच्चों, आप सबको नमस्ते। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। आप कैसे हो? क्या आप सब अच्छे हैं? ठीक है, मैं आज 6वीं कक्षा मध्यमा किताब से भाग 1 पद्य से पहला कविता लेना चाहती हूँ। उस कविता का नाम यह है कि पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा का मतलब द डिजायर ऑफ ए फ्लावर। इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। आइए इन कवि के बारे में कुछ जान लेंगे। द पोएम पुष्प की अभिलाषा was written by Sri Makhanlal Chaturvedi. He was born on 4th April 1889 in a place called Babai in Hoshangabad district of Madhya Pradesh. His father was Narendra Lal Chaturvedi. He was a poet, writer and journalist. His poems have been given distributed with love, nature along with patriotism. In 1955, Sahitya Akademi Award given for him. Him Tarangini, Him Kritini, Yugcharan are his famous poetic works. He was died in Bhopal on 30 January 1968 at the age of 78. Come, let us see the poem. पुष्प की अभिलाषा, the desire of a flower. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंता जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंता जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली। उस पद पर देना तुम फेंक, उस पद पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। Come, let us see the poem meaning. So in this poem, the flower reveals her desire to remember the leaders and the great warriors who were sacrificed their life for our motherland. As we know, recently in China, our Indian soldiers has died because they want to save our country from China. In that way, the flower thinks that it doesn't want to make a decorate living or a dead person. The flower wants to touch the feet of their great warriors. Come, let us see the meaning. पुष्प की अभिलाषा, the desire of a flower. चाह नहीं मैसूर बाला के गहनों में घूमता जाऊं। चाह नहीं मैसूर बाला के गहनों में घूमता जाऊं। The flower don't want to be decorated in the jewels of deity. Surbala means devata, deity. चाह नहीं means don't want. गहनों means आभूषण, jewel. चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। The flower don't want lover to seduce the beloved. Premi mala means lover rosary. Bind to tie. Pyar means lover. Lalchana means आकर्षित करना, to attract. चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। The flower don't want to fall on the dead bodies of the king. Samrata means Maharaja, that means emperor. Shav, dead body. Par means on. Hari, Ishwar, God. चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं। The flower don't want climb on the heads of the god.
Yasir means head. Devo here also God. Bhagya means luck, takdir, luck. Itlau means घमंड करना, too proud. Chadu means climb. मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक. The flower wants to pluck her and throw on the path. तोड़ लेना means pluck. मुझे me. वनमाली means gardener, बगीचे में रहने वाला. पथ means way, रास्ता. फेंक means throw. मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक. Were the great warriors who were sacrificed their life for our motherland. मातृभूमि means motherland. Veer means the great soldiers, brave men. Anek means many. This poem was written by Sri Makhanlal Chaturvedi. Yes, see once again. चा नहीं मैसूर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चा नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं. The flower don't want to be decorated in the jewels of deity. The flower don't want lover to seduce the beloved. चा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरे डाला जाऊं, चा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इकलाऊं. The flower don't want to fall on the dead bodies of the king. The flower don't want to climb on the heads of the gods. मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक. मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक. The flower wants to pluck her and throw on the path where the great warriors who were protect our nation. Now, regarding this poem, I will show some pictures to you. Listen here. ये हैं इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी. इनका जन्म 4 अप्रैल इन 1889 में हुआ. इनका निधन 30 जनवरी 1968 में हुआ. फूल देवों को गहनों से सजाना और स्त्रियों के बालों को अलंकृत करना नहीं चाहता है. फूल दो प्रेमियों की माला बनकर सजाना भी नहीं चाहता है. फूल राजाओं के शव पर डाला जाना भी नहीं चाहता है. फूल देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर घमंड करना भी नहीं चाहता है. फूल भगवान के चरणों पर चढ़ाया जाना भी नहीं चाहता है. फूल वनमाली से कहता है कि उसे तोड़कर उस रास्ते में फेंकने के लिए कहता है जहां महान शूरवीरों ने अपने देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते में फेंकने के लिए कहता है. कवि बताते हैं कि फूल ऐश्वर्य और शक्ति से भी प्रभावित नहीं होता. कवि ने एक फूल के द्वारा त्याग और देश प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया है. Now shall we see the Sabda meaning. Listen. Chaw. Chaw means icha. Next, bindna.
गूंथा जाना, गहनों, आभूषण, पथ, रास्ता, ललचाना, ललचाना, आकर्षित करना, ललचाना मीन्स आकर्षित करना, सम्राट, महाराज, सम्राट, महाराज, सुरबाला, देवकन्या, नेक्स्ट इतलाना, घमंड करना, वनमाली, बगीचे का रखवाली, बगीचे का रखवाली, भाग्य, तकदीर, हरि, ईश्वर, लिसन, चा, इच्छा, बिंदना, गूंथा जाना, गहनों, आभूषण, पथ, रास्ता, ललचाना, आकर्षित करना, सम्राट, महाराज, सुरबाला, देवकन्या, इतलाना, घमंड करना, वनमाली, बगीचे का रखवाली, भाग्य, तकदीर, हरि, ईश्वर. Now see the meaning. Cha, ichha means desire. Bindna, gunda jana means to tie. Gaheno, आभूषण, jewel. पथ, रास्ता, वे. ललचाना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट. सम्राट, महाराज, एम्परर. सुरबाला, देवकन्या, डेटी. इतलाना, घमंड करना, टू प्राउड. वनमाली, बगीचे का रखवाला, दैट मीन्स गार्डनर. भाग्य, तकदीर, लक. हरि, ईश्वर, गॉड. Now listen. चा, इच्छा, desire. बिंदना, गूंथा जाना, to tie. गहनों, आभूषण, ज्वेल. पथ, रास्ता, वे. ललचाना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट. सम्राट, महाराज, एम्परर. सुरबाला, देवकन्या, डेटी. इतलाना, घमंड करना, टू प्राउड. वनमाली, बगीचे का रखवाली, गार्डनर. भाग्य, तकदीर, लक. हरि, ईश्वर, गॉड. Let us see some vocabularies. शब्दावली. शब्दावली means vocabularies. Listen. मातृभूमि. Second one, न्योछावर. Next, देशभक्ति. Next, महान. महान. Next, अलंकार.
नेक्स्ट चरणों, नेक्स्ट सूरवीर, लिसन हियर, मातृभूमि, न्योछावर, देशभक्ति, महान, अलंकार, चरणों, सूरवीर. मातृभूमि means motherland. न्योछावर means sacrifice. देशभक्ति means patriotism. महान means great. अलंकार means decoration. Charno means feet. Surveer means brave men. That means great warriors. Great warriors. Okay, students. In this poem, there are three topics is there. One is padyans. That means praise writing. Second one is gadyans. That means sarans, summary writing. The third topic is uttar dijiye. Now, shall we see the sarans, summary writing? Come, let us see. पुष्पकी अभिलाषा. माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता के माध्यम से एक फूल की इच्छा को प्रकट करते हैं. वे कहते हैं कि जब माली अपने बगीचे में फूल तोड़ने जाता है, तब वह फूल से पूछता है कि वह कहाँ जाना चाहता है, माला बनना चाहता है या भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहता है. माली के प्रश्नों का उत्तर देते हुए फूल बताता है कि वह किसी स्त्री के बालों को अलंकृत करना नहीं चाहता है, ना ही दो प्रेमियों की माला बनना चाहता. उसको यह भी चाह नहीं कि वह किसी राजा के शव पर चढ़ाया जाए या भगवान के सिर पर चढ़कर अपना भाग्य बना ले. फूल अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि उसे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जहां महान सूरवीर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हैं. वह उन सूरवीरों के पैरों पर पड़ना चाहता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है. विशेषता, विशेषता मीन्स स्पेशलिटी. इस कविता के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी ने एक फूल के माध्यम से देशभक्ति की भावना प्रकट की है. Now let us see the meanings. माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता के माध्यम से एक फूल की इच्छा को प्रकट करते हैं. From this poem, the poet Makhanlal Chaturvedi says that the desire of a flower. वे कहते हैं कि जब माली अपने बगीचे में फूल तोड़ने जाता है, तब वह फूल से पूछता है कि वह कहाँ जाना चाहता है. He says, when the gardener goes and pluck the flowers, he asked the flowers, where does it wants to go? माला बनना चाहता है या भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहता है. He asked whether it wants to become a garland or it wants to be offered at the God's feet. माली के प्रश्नों का उत्तर देते हुए फूल बताता है कि वह किसी स्त्री के बालों को अलंकृत करना नहीं चाहता. The gardener asked the question, the flower also answering that it doesn't want become a garland for a beautiful lady's head decoration. ना ही दो प्रेमियों की माला बनना चाहता. It doesn't want become a garland for two lovers. उसको
यह भी चाह नहीं कि वह किसी राजा के शव पर चढ़ाया जाए। And it doesn't want even become a garland for death of kings. या भगवान के सिर पर चढ़कर अपना भाग्य बना ले। It says it doesn't want to become the flower which is given to God for praising God. फूल अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि उसे तोड़कर उस पद पर फेंक देना। The flower expresses her desire. He says, the flower wants to pluck her and throw on the path. जहाँ महान सूरवीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए शीश चढ़ाने जा रहे हैं, were the great warriors who were going to protect our nation. It says, I want to place myself on the road. Please throw me on the road. Where the great warriors walk. वह उन सूरवीरों के पैरों पर पड़ना चाहता है। The flower want to touch the feet of their great warriors. जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है, who have given everything to sacrifice for our motherland. विशेषता, speciality. What is the speciality of this poem means? इस कविता के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी ने एक फूल के माध्यम से देशभक्ति की भावना प्रकट की है। Through this poem, the poet expresses the feeling of a flower that the poet has told about the patriotism of the flower. As we come to know from this poem that even the flower has feeling about the patriotism, but the people doesn't know about their country's patriotism. They are fighting among themselves how they can save their country from the enemies. Now let us see some words meaning here. Madhyam means through. THROUGH, through. Prakat, express. Icha, desire. Mali, gardener. Torne, plug. Pusta means ask. Kaha means where. Bhagavan means God. Charno, feet. Prashno means question. Uttar means answer. Stri means woman. Balo means hair. Alankrut means decoration. Priyam means lovers. Shav means dead body. Matrubhumi means motherland. Nyochavar means sacrifice. Okay students, regarding this summary, we will see some question answer. Come let us see. उत्तर दीजिए। इस कविता में पुष्प की अभिलाषा क्या है? What is the desire of flower in this poem? मातृभूमि के प्रति बलिदान करने वाले मातृभूमि के प्रति बलिदान करने वाले वीरों का पैर छूना पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा है। मातृभूमि के प्रति बलिदान करने वाले वीरों का पैर छूना पुष्प की अभिलाषा है। The desire of the flower is the flower want to touch the feet of their great warriors. See the next question. पुष्प की अभिलाषा
कविता का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of the flower wishes in this poem? मातृभूमि को सब कुछ माना, और उसके लिए बलिदान होने की भावना, बलिदान होने की भावना मन में लाना, मन में लाना इस कविता का उद्देश्य है। इस कविता का उद्देश्य है। The aim of this poem is to keep the motherland in mind and to sacrifice everything for it. The next question, फूल क्यों देवता के सिर पर सजना नहीं चाहता है? Why does the flower not want to decorate the head of the deity? फूल देवता के सिर पर इसलिए नहीं चाहता है कि वह सिर्फ ये अलंकार वस्तु बनना नहीं चाहता है। फूल देवता के सिर पर इसलिए नहीं देवता के सिर पर नहीं सजना चाहता है कि वह सिर्फ एक अलंकार वस्तु बनना नहीं चाहता। The flower does not want to make it decorate in the jewels of deity because the flower doesn't want to be just an ornament. Okay, students, you note down these question answers and the meanings in your notebook and read well in your home. Thank you, students.